Okay, doctors, very good evening. And since we have already finished with the breathing mechanism part, I already told you basic 5 points to study whatever the human physiology is. Whatever the human physiology is, we will deal it based on the 5 points. Anyone who can tell me what are those 5 points? Anyone? Evolutionary trends, human complete system, anatomy, physiology, regulation of physiology, and disorders. And Madam, facts. कितने सारे हो गए? Number 1 is evolutionary trend, Gayatri. Agree? Yes. Number two is structure and anatomy. Correct? Yes, sir. Number 3 is mechanism and physiology. Correct? Yes, sir. Number 4 is regulation. Correct? And number 5 is disorder. So those are the basic 5 points based on which we are dealing with whatever the human physiology is. We have completed nicely the digestion complete part. Then we switch to breathing and exchange of gases. We have discussed why the chapter is named as breathing and exchange of gases. Then we study the evolutionary trend, like those organisms who respire or breathe in and out with their cuticle region, with their mouth, with their lungs, through their gills and whatnot. There are so many evolutionary modes or traits that different organisms adapted at different phylums. After that, we discuss the anatomy and structure. Very nicely, we labeled one of the structure for lungs, in which outer membrane was pleural membrane, also called as pleura. The outer one is parietal pleura, and the inner one is visceral pleura. And the between outer parietal pleura and inner visceral pleura, there is a fluid named as pleural fluid. Perfect. And the inflammation in this pleural fluid, the disease is known as Pleuritis. pleurisy. And the specialist of that lungs is Pleurologist. Perfect. Perfect. Ayush Ghumre, are you there? Ayush Ghumre? Yes, sir. Okay, perfect. Ayush, you missed some of your classes, last few classes? Yes, sir. Last class only. Okay, fine. चलिए. So, हम लोगों ने ये भी देख लिया उसका structure. Then we studied that this tracheal system divides into two primary bronchus. At which vertebra? T5. Yes, thoracic का fifth vertebra. That primary bronchus open into secondary bronchus, tertiary bronchus, and finally the bronchioles that opens into the alveoli. Agree? Yes. Yes. One part probably that I missed was कि one is respiratory tract and one is exchange part. One is the region where actual exchange takes place, that is alveoli, and one is only tract. जहां से सिर्फ एयर आती जाती है, वहां एक्सचेंज नहीं होता. एक्सचेंज केवल वो एल्वेलायर वाले पार्ट में होता है. तो वो एल्वेलाई जो है वो एक्सचेंज वाला पार्ट हुआ, रेस्ट जो है वो ट्रैक्ट. परफेक्ट. आफ्टर दैट हमने वहां पर कार्डियक नॉच देखा. उस कार्डियक नॉच में हमने कार्डियक पार्ट देखा. हमने मीडिया स्टीनम देखा. उस मीडिया स्टीनम से ब्लड वेसल्स, लिम्फ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो सब वहां से पास होता. नीचे की तरफ हमने डायफ्राम देखा. Then we study the mechanism. After that, we studied the mechanism. The mechanism was based on 4 muscles. Anyone who can tell me those 4 muscles? Anyone? Diaphragm, internal intercostal, external intercostal, and abdominal. एक मिनट. प्राप्ति भंडारी की आवाज आई है बहुत दिनों बाद. प्राप्ति भंडारी बोलिए. Diaphragm, internal intercostal muscles, external intercostal muscles, and abdominal muscles. परफेक्ट. एक हो गई डायफ्राम, एक हो गई एब्डोमिनल, एक हो गई इंटरनल इंटरकॉस्टल और एक हो गई एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल. और इसमें जो अपोजिट की बात करते हैं तो एब्डोमिनल मसल एंड डायफ्राम मसल आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर. अग्री?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Internal intercostal and external intercostal are opposite to each other. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, as far as inhalation is concerned, जिससे पूछूं वही जवाब देगा. अर्पित जाधव, कुंजल मंत्री, दोनों में से कोई भी एक जवाब दीजिए. What are the changes during inhalation? Anyone? Sir, may I? Yes. Sir, during inhalation, the diaphragm contracts and the abdominal abdominal muscle relax. Then the internal intercostal relax and external intercostal contract, and volume of the thoracic cavity increases, due to which the oxygen we can take the oxygen. Perfect. Kunjal Mantri, Yes, what will sir. happen during exhalation? So diaphragm will relax, abdominal cavity will contract, external intercostal muscles will relax, internal intercostal muscles will contract, and volume of thoracic cavity will decrease, due to which the CO2 will rush out and expiration will decrease. तो अपन ने ऐसा भी कहना चाहिए, दोनों ने एक चीज मिस कर दी. ड्यूरिंग इनहेलेशन नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन पॉजिटिव प्रेशर क्रिएटेड. एम आई राइट गायत्री? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये तो मैकेनिज्म बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गई सबके. उसके बाद एज पर एनसीईआरटी मेरे से एक टॉपिक अभी छूटा हुआ है, कुछ कैपेसिटीज मुझे बतानी, बट उसके पहले मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. O2 के ट्रांसपोर्ट के मैंने 2 तरीके बताए. एनीवन? गितेश, O2 के ट्रांसपोर्ट के 2 तरीके बताए. गितेश नहीं जवाब दे रहे हैं. गितेश मैं रिमूव कर दूंगा. संजना सिन्नरकर बोलिए. Chloride shift and reverse chloride shift. नो. अरे O2 के ट्रांसपोर्ट के 2 तरीके बताए थे दोस्तों. HbO2 and dissolved in plasma. HbO2 and dissolved In in the plasma. form of HbO2 97% and in the dissolved form 3%. परफेक्ट. इन CO2 ट्रांसपोर्टेशन के 3 तरीके बताए थे मैंने, वो बताएंगे मुझे श्रेयस पैठणे. CO2 ट्रांसपोर्ट के 3 तरीके. श्रेयस बोलिए. Yes, sir. HCO3, HbCO2 and in dissolved form. परसेंटेज बताइए मुझे. 30%, HbCO2 23%, dissolved form 7%. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. ये 3 तरीके हो गए. तो उसके बाद बच्चों में आया था O2 डिसोसिएशन कर्व, क्योंकि मुझे आपको बोर और हेल्डन इफेक्ट बताना, इसीलिए मैंने आपको एक O2 डिसोसिएशन कर्व बताया. और O2 डिसोसिएशन कर्व समझाते समय मुझे आपको डीपीजी का कंसेप्ट बताना. This was x-axis, this was y-axis. On x-axis, what we taken? Partial pressure of oxygen. Y-axis, what we taken? Percent hemoglobin saturation. Agree? Yes. Yes, sir. Yes. And graph we form in this way. Agree? Yes, sir. That means what graph suggests कि if the partial pressure of oxygen increases, understood? एकदम सी कॉमन सी बात है ना. If partial pressure of oxygen increases, therefore percent hemoglobin saturation will increases. Agree? Yes, sir. Yes, sir. परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेशन. जाहिर सी बात है, हीमोग्लोबिन कैसा मॉलिक्यूल है? मैंने कहा था इसके लिए एक वर्ड, Opportunistic molecule. बहुत बढ़िया. ये कहता है कि जो ज्यादा होगा मैं तो उससे जुड़ जाऊंगा, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं बॉडी में क्या हो रहा है. मुझे जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा मिलेगा मैं तो उसके साथ खोलूंगा. अब यहाँ पर उसको पार्शियल प्रेशर ज्यादा मिल गया ऑक्सीजन का, तो Hb ने क्या बना दिया? HbO2. अग्री? Yes, sir. बट मुक्ति ये समझना पड़ेगा कि ये मैंने आपको क्या बताया है? एसोसिएशन. अग्री? Yes, sir. जब भी पार्शियल प्रेशर दोस्त ज्यादा होता है HbO2 एसोसिएट हो जाता है. जबकि इस कर्व का नाम क्या है?
डिसोसिएशन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन। O2 डिसोसिएशन कर, ना कि एसोसिएशन। तो मुझे यहाँ पर आपको O2 का डिसोसिएशन भी समझाना है। अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट। जब मुझे O2 का डिसोसिएशन बताना है, मतलब जाहिर सी बात है कि मुझे कोई ये समझाना चाह रहा है कि PO2 if PO2 decreases, then HB and O2 dissociate. Agree? यस सर। Yes, Yes. sir. O2 कम हो गया तो HB और O2 क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। बस कहानी इतनी सी है दोस्तों कि मुझे आपको ये रियलाइज कराना है कि PO2 कब कब कम हो सकता है। केस नंबर 1, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि PO2 कब कब कम हो सकता है। केस नंबर 1, जब PCO2 ज्यादा हो जाए। अग्री? Yes, sir. अग्री? Yes, sir. यस अरे भाई, PO2 कम, मुझे आपको डिसोसिएशन कर्व बताना है ना। तो जब डिसोसिएशन कर्व बताना मतलब मुझे HB से O2 को हटाना है, मतलब परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेशन मुझे नीचे लाना है। मतलब मुझे समझ में आ गया कि PO2 कम करना है। और PO2 किन किन परिस्थितियों में, किन किन केसेस में कम हो सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि क्या बढ़ जाए? CO2। Carbon partial dioxide. pressure of भाई carbon. जाहिर सी बात है, पार्शियल प्रेशर CO2 यदि बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? PO2 क्या हो जाएगा? डिक्रीज। Decrease हो जाएगा. डिक्रीज। दूसरी कंडीशन केस 2 में ये भी मैं कर सकता हूं कि यदि पीएच जो है वो कम हो जाए। पीएच कम हो गया तो एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? Acidic. Acidic. और एसिडिक यदि हो गया तब भी HB और O2 क्या हो जाएगा? Dissociate. क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में HB और O2 एसोसिएट नहीं रह सकता। यहां भी क्या हो जाएगा? पहली कंडीशन में HB और O2 डिसोसिएट। तीसरी कंडीशन देखते हैं दोस्तों, केस 3 में क्या हो सकता है। स्पंदन ने सवाल पूछा था कि सर मुझे DPG समझाइए। स्पंदन, एम आई राइट? Yes, sir. डू यू नो व्हाट इज DPG? Diphosphoglycerate. डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अग्री? Yes, sir. नाम फिर से बोलिए, क्या बोला मैंने? Diphosphoglyceric acid. डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब एसिड है कि बेस है वो? Acid. पीएच कम होगा कि ज्यादा? Cum. एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? Acidic. तो HB और O2 क्या हो जाएगा? Dissociate. यहाँ तक क्लियर हुआ बात? Yes, sir. यस मतलब इस कंडीशन में भी क्या हुआ? डिसोसिएशन। इस कंडीशन में भी क्या हुआ? डिसोसिएशन। क्योंकि मुझे पढ़ाना तो डिसोसिएशन ही है ना, इज इट? चलिए केस 3 की बात करते हैं। टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि राइज कर जाए तो मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि PaCO2 का लेवल इंक्रीज हो गया है। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होना मतलब CO2, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जवाबदार गैस कौन सी? CO2। अग्री? अरे Yes, sir. वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? CO2. टेम्परेचर ज्यादा हो गया होगा गायत्री, मतलब PCO2 ज्यादा होगा। अंडरस्टूड सी बात है। और यदि PCO2 ज्यादा होता है तो मैं क्या कंसीडर करता हूँ? HbO2 एसोसिएट की डिसोसिएट? Dissociate. Dissociate. देयरफॉर यहाँ पर भी क्या? डिसोसिएशन। अब ये चीजें तो समझ में आ गई कि डिसोसिएशन होता है। अब समझना बस ये है मुक्तिद भाई कि डिसोसिएशन में कर्व राइट शिफ्ट करेगा कि लेफ्ट शिफ्ट करेगा? मुक्तिद, यही सवाल था अपना। यस सर। तानिया, स्वराज, अदिति, कुंजल, सम्यक, श्वेता, स्वानंदी, इशिता, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes. sir. यस सर। अब मुझे बस आपको ये समझा देना है, यदि मैं इसमें सफल हो गया तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं कहता हूं मैं ग्राफ के इधर और ग्राफ के इधर, ग्राफ के इधर मैं कर देता हूं डिसोसिएशन और ग्राफ के इधर मैं कर देता हूं क्या? एसोसिएशन। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों?
इससे उधर और इधर में एसोसिएशन और डिसोसिएशन कैसा? भाई परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%। यदि ये परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेशन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? O2 ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है? बोलो। ज्यादा ज्यादा हो रही है। मतलब इसके इधर PeO2 ज्यादा और इसके इधर CO2 ज्यादा। अंडरस्टूड? वेदांत, Yes, sir. स्वराज, सम्यक, Yes, sir. Yes, sir. राशि, वैष्णवी, विधि, तन्वेश, सुहानी, Yes, sir. अयन दरबार, सानिका कासार। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों। भाई y एक्सिस पे कब बढ़ता जाऊंगा मैं? परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। सैचुरेशन कब बढ़ेगा? जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ये सैचुरेट होता जाएगा। तो जैसे जैसे कर्व राइट होता जा रहा है, सॉरी लेफ्ट होता जा रहा है, ये धीरे से इस तरह होता जाएगा, फिर ये इस तरह होता जाएगा और एक स्टेट आएगी कि पूरा ऐसा हो जाएगा। मतलब 100% सीधा तेजी से सैचुरेशन आएगा। दैट मीन्स कि PO2 बढ़ रहा है। तो ग्राफ के राइट हैंड साइड पर PCO2 और लेफ्ट हैंड साइड पर PO2। मुक्ति, अंडरस्टूड? Yes, sir. तो सिंपल सी बात है, जब भी डिसोसिएशन होगा, किसका डिसोसिएशन ऑफ HB एंड O2, तो किसका एसोसिएशन? किसका एसोसिएशन? HB and CO2. और यहाँ PO2 से एसोसिएशन, तो किसका डिसोसिएशन? CO2. CO2. अंडरस्टूड दोस्तों? Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे बताइए, what will happen in all these three conditions? Will shift right or left? Right. Right side. Right. Right side. Will shift right. अब मैंने शायद आपसे एक सवाल पूछा हो क्लास खत्म करने के पहले। This is x axis, this is y axis, और आपसे ग्राफ पूछे गए थे 1, 2, 3, 1, 2, 3, और आपको आइडेंटिफाई करना था एथलीट, फीटस और प्रेग्नेंट लेडी। Whose graph is graph number 1, whose graph is graph number 2, and whose graph is graph number 3? Just identify which is 1, 2, 3. यहां नहीं लिखता हूं मैं, आप मुझे बताएं। Did I ask you this question? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So you need to explain me properly. Just tell me. Anyone, just raise your hand. Sayan Darbar, I expect from you first. Sayan. Sayan. Sir, the first will be athlete. First will be athlete. I agree. Absolutely agree. Second will be what? Second will be pregnant lady. Second will be pregnant lady. ऐसा आपको लगता है? The reason? The reason? Because she needs more. आवाज नहीं आ रहा है. Second will be fetus, my dear, and third will be the lady. The reason is, इसका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट है एथलीट का, उसके बाद फीटस का है और उसके बाद प्रेग्नेंट लेडी का है. तो ब्रीदिंग रेट से चाहे तो जोड़ लो या एथलीट की वैसी डेली प्रैक्टिस से जोड़ लो, एक्सरसाइज के दौरान, नॉट ओनली ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वैसे भी उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का सिचुएशन ज्यादा होता है क्योंकि वह एथलीट है. सो बाय डिफॉल्ट उसने इतना एक्सरसाइज किया, इतना प्रैक्टिस किया है कि उसका एचबी और O2 का एसोसिएशन ज्यादा है. उसके बाद आता है फीटस का नंबर और उसके बाद आता है कॉमन मैन या प्रेग्नेंट लेडी, जिसका कि इन दोनों के कंपैरिजन में कम है,
बट कॉमन मैन के कंपैरिजन उसका ज्यादा होगा। और इससे यदि मैंने कॉमन मैन भी दिया होगा तो एक और ग्राफ मैंने आपको दिया होगा नंबर 4, दैट इज फॉर कॉमन मैन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt to anyone? Shravani, Shreya, Shubham Rothe, Suhani Chhajed, Utkarsha Mali, please tell me. आप मुझे यदि जवाब नहीं देते हो हाँ या ना तो आई विल रिमूव यू। उत्कर्षा माली, वैष्णवी देशमुख, वैष्णवी विधि, इफ यू विल नॉट आंसर आई विल रिमूव यू। उत्कर्षा, उत्कर्षा, आई एम गोइंग टू रिमूव यू। वैष्णवी, बोथ दी वैष्णवी। Yes, sir. आप ऐसे नहीं मानेंगे। एक नाम लिख लिया मैंने, उत्कर्षा। इनके पेरेंट्स को आगे बात करनी पड़ेगी। तन्वेश, तन्वेश, कैन यू आंसर? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay, perfect. मतलब तन्वेश is there. Shwani Chhajed is answering. Shubham Rothe is answering. Shravani, Yes, sir. Yes, sir. Sanika Kasar, understood? Yes, sir. Shreya Bade, Yes, sir. Samida, Yes, sir. Sai Kharde, Yes, sir. Kasi Choradia, Prasanna Dikshit, Prajakta Patil, Sir. Yes, sir. Mugdha Dawalkar, Yes, sir. Mugdha, Mridula, Maithili, understood? Yes, sir. Understood. चलिए, तो बच्चों ये वाली बात भी समझ में आ गई। और मैं समझता हूँ स्पंदन डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड की बात। हाँ अदिति, यू रेज योर हैंड आई थिंक। अदिति बोलिए। Sir, I didn't understood that second case. Fetus case or this case? Yes, sir, that pH level decreases. Okay, no problem. pH, if pH decreases, Aditi, if pH decreases, the environment will be acidic. Yes or no? Yes, sir. Perfect. Acidic environment के केस में CO2 is more acidic than O2. Acidic environment यदि ज्यादा है तो definitely CO2 का concentration ज्यादा है। अदिति। Okay, sir. और CO2 का concentration यदि ज्यादा है तो क्या लगता है, HbO2 से एसोसिएट होगा कि CO2 से एसोसिएट होगा? CO2. CO2. परफेक्ट। और CO2 से यदि एसोसिएट होगा तो O2 से क्या हो जाएगा? Dissociate. Dissociate. डिसोसिएट। तो शिफ्ट कर्व किधर पे शिफ्ट हो जाएगा? Right. That's it. अब मुक्तिद और स्पंदन जो आपने सवाल पूछा उस पर से एक और पॉइंट अभी निकल कर मेरा आया। मुझे दो इफेक्ट आपको बताने। वन इज बोअर्स इफेक्ट एंड वन इज हेल्डेन्स इफेक्ट। मैं दोनों की डेफिनेशन आपको लिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, आप डेफिनेशन लिखेंगे या मैं शेयर ही कर दे रहा हूं। जस्ट मिनट, तब तक देखिए मैं इमेज शेयर कर रहा हूं, तब तक देखकर मुझे बताइए इफ यू हैव एनी डाउट। आई एम गोइंग टू शेयर एन इमेज। बोअर्स इफेक्ट एंड हेल्डेन इफेक्ट। Please check if any doubt. Any doubt? No. No, sir. आवाज नहीं आ रही है। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir.
हेडिंग डालिए बोर्स इफेक्ट, हेडिंग डालिए बोर्स इफेक्ट. कैन यू सी द इमेज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज राइट. मैं लिखवा रहा हूं, एज इट इज नहीं कॉपी करेंगे, मैं लिखवा रहा हूं बोर्स इफेक्ट. According to this effect, hemoglobin oxygen binding affinity is inversely proportionate to the acidity or to the concentration of carbon dioxide. Noted? Yes, sir. Yes, sir. मतलब सेंटेंस का मतलब, सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है बच्चों, क्रिस्टल क्लियर है कि यदि एसिडिटी इंक्रीज होती है या CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, if by any means acidity increases or by any means CO2 increases, then जाहिर सी बात है O2 एंड हीमोग्लोबिन की अफिनिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी. Decrease. Understood? Yes, sir. Perfect. I'll request you all, I'll suggest you all to please space for 2 lines. 2 लाइन छोड़ दीजिए और हेडिंग डालिए हेल्डन इफेक्ट. 2 लाइन छोड़ दीजिए और हेडिंग डालिए हेल्डन इफेक्ट. उन 2 लाइंस में आपको क्या लिखना है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको समझना है खुद से और लिखना है, मैं लिखवाऊंगा नहीं उसे. सो हेडिंग डालेंगे हेल्डन इफेक्ट. According to the effect, carbon dioxide, according to the effect, carbon dioxide dissociate with hemoglobin if स्पंदन क्या सेंटेंस लिखा? According to the effect, carbon dioxide dissociates with hemoglobin if. थोड़ा सा उसमें करेक्शन करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट, जहां कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है वो ऑक्सीजन लिखें, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है वो ऑक्सीजन लिखें. स्पंदन, नाउ रीड द सेंटेंस. According to the effect, oxygen dissociates with hemoglobin if the concentration of oxygen increases, अब देखिए दोनों इफेक्ट में लिखते समय बच्चों कहना चाहिए कि इफ द के आगे सेंटेंस फिर से स्पंदन फिर से पढ़िए. according to the effect, oxygen dissociates with hemoglobin if the concentration of oxygen increases. पूरा ही गड़बड़ हो गया. नो प्रॉब्लम. स्पंदन, कैन यू रीड द सेंटेंस स्लोली? According to the effect, oxygen dissociates with hemoglobin if the concentration of oxygen increases. The concentration of CO2 increases. Noted? Yes, sir. Yes, sir. दोनों पिक्चर बिल्कुल क्लियर करता हूँ.
क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो हैं बड़े एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हैं, तो दोनों में दिक्कत नहीं आए, अपन दोनों ही इसको ध्यान से समझते हैं। पहले मैं लिखवा दूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब जहां पर हमने स्पेस छोड़ा था बोहर इफेक्ट के बाद, वहां लिखेंगे बोहर इफेक्ट में जहां स्पेस छोड़ा था। बोहर इफेक्ट is more important in promoting O2 transport, whereas Haldane effect promote CO2 transport, Notate? Yes, sir. Yes, sir. लीजिए, Yes, sir. अब सारा दोनों इफेक्ट लिखने के बाद, जहां दोनों इफेक्ट हमने लिख दिए, लिखते हैं नोट। दोनों इफेक्ट लिख दिए, अब लिखते हैं नोट। both the effects complement each other, full stop, near the tissue more concentration of CO2 promote HB and O2 dissociation, and unloading of O2 to the tissues. Full stop. Whereas unloading of O2 to the tissues itself promote uptake of CO2 by Haldane effect. Uptake of CO2 by Haldane effect. गायत्री, स्टेटमेंट धीरे धीरे पढ़िए जरा, लास्ट वाला, मतलब लास्ट 3 Yes, लाइंस। Note, both the effects complement each other. Near tissues, more concentration of CO2 promotes HB and O2 dissociation and unloading of O2 to the tissues, whereas unloading of O2 to the tissues itself promotes uptake of CO2 by Haldane effect. तो जहां पर पहला फुल स्टॉप लगा था, अनलोडिंग ऑफ O2 नोट करने के बाद, गायत्री फिर से एक बार पढ़िए धीरे धीरे, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा बीच में, पढ़िए। Both the effects complement each other. Near tissues, more concentration of CO2 promotes HB and O2 dissociation and unloading of O2 to tissues. Sir, here full stop is there. Yes, यहाँ पे लिखेंगे by Bohr's effect. फुल स्टॉप के पहले by Bohr's effect.
मतलब गायत्री सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि यदि O2 टिश्यू को देना है तो कौन से इफेक्ट से दी जाएगी? देनी है तो बोर्स इफेक्ट। सर हेल्डन इफेक्ट। फोर्स इफेक्ट। अभी मैंने कहा ना O2 को देनी है, अनलोडिंग टू टिश्यू, टिश्यू में अनलोड कर देना है, तो टिश्यू को दे देना है, टिश्यू को दे देना है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ बोर्स इफेक्ट। और सेम टाइम यदि CO2 को ब्लड में वापस दे देना है टिश्यू से, तो कौन सा इफेक्ट? देन हेल्डन। हेल्डन इफेक्ट। यस। अब जो लिखा है दोस्तों उसको समझते हैं, जो लिखा है उसको समझते हैं। मैं स्क्रीन ऑफ करता हूं। देखिए छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा सा उलझा हुआ कंसेप्ट है। ओमकार गुंजाल, ओमकार बेटा समझ में आ रहा है? ओमकार, ओमकार आर यू देयर? Yes, sir, I'm there. देखिए थोड़ा सा बात को समझते हैं। मैंने आपसे कहा दोनों इफेक्ट क्या कहना चाह रहे हैं। पहले तो दोनों इफेक्ट की अलग अलग डेफिनेशन समझते हैं जो मैंने अभी आपको लिखवाई, क्योंकि लिखवाने में थोड़ा सा मैं शायद उलझ गया, क्योंकि मैं ऑनलाइन मोड में बैठा हूं तो विचार कर करके आपको लिखा रहा था। तो अभी मैंने बोर इफेक्ट आपको लिखाया, हेल्डन इफेक्ट और बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट मैंने आपको बताया कि यदि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज और pH डिक्रीज, then HB and O2 dissociate. Is this the Bohr effect we wrote? Yes, Tell sir. me. Yes, sir. यही था? Yes, sir. Perfect. Perfect. अब इसका ठीक अपोजिट ले लेता हूं यार मैं, कि यदि CO2 इंक्रीज होता है या pH डिक्रीज होता है तो HB और O2 का डिसोसिएशन होता है, और यदि HB और O2 एसोसिएट हो गए, यदि HB और O2 एसोसिएट हो गए हैं तो CO2 डिस्प्लेस होती जाती, तो CO2 डिसोसिएट होता जाएगा। अग्री? Yes, sir. भाई दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, अंडरस्टूड सी बात है। यदि HB O2 से डिसोसिएट हो रहा है तो CO2 के पास जाएगा, और CO2 से डिसोसिएट हो रहा है तो O2 के पास आएगा। अग्री विद दिस और नॉट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. दोनों ने चीजें कॉम्प्लीमेंट्री बताई, सिर्फ बताने का तरीका अलग था। कान को पकड़ा लेकिन पकड़ने का तरीका अलग था। कैसे पकड़ा? भाई यदि CO2 बढ़ गई तो एवरीवन नोज कि O2 से डिसोसिएशन हो जाएगा। यस और नो? yes, sir. Yes, sir. और दूसरा कहता है कि यदि Yes, O2 से एसोसिएशन हो गया तो CO2 डिसोसिएट होती जाएगी। अंडरस्टूड? Yes, यस सर। अब देखना और समझना इस बात को है कि बोर इफेक्ट किसको प्रमोट करता है और हेल्डन इफेक्ट किसको प्रमोट करता है। अब समझते हैं। यदि मैंने आपसे कहा कि CO2 इंक्रीज हो रही है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इन तीन जगह पर, एक हो गई एल्वेलाई, एक हो गई ब्लड वेसल्स, और एक हो गया टिश्यू। एक हो गया टिश्यू, एक हो गया ट्रांसपोर्ट यानी ब्लड, और एक हो गया लंग्स। सोच विचार कर बताना मुग्धा मैडम, मृदुला मैडम, मैथिली मैडम, सोच के मुझे बताइए कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज आप किस जगह पर ज्यादा पाएंगे। एट व्हाट प्लेस, एट विच प्लेस यू विल फाइंड more CO2 concentration? Tell me. Sir, in Mridula, tissues. who told? Spandan, sir. स्पंदन, बहुत बढ़िया। स्पंदन बहुत बढ़िया। मैंने पूछा था मृदुला, मुग्धा, मैथिली, डिड यू अंडरस्टैंड? मैथिली, मृदुला, मुग्धा? Yes, sir. बेटा क्योंकि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन तो यही ज्यादा होगा ना, क्योंकि अरे इसमें तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? O2. Oxygen. O2.
मैं इनहेल कर रहा हूं, इनहेल करके ऑक्सीजन जा रही है, इसको डिलीवर हो रही है, यहाँ पर सारा का सारा बायोलॉजिकल बर्निंग हो रहा है, तो बर्निंग होने के बाद व्हाट वी एक्सपेक्ट कि CO2 विल बी मोर नियर द टिश्यू. अंडरस्टूड? Yes, sir. So if CO2 is more, then Hb and O2 will dissociate. Yes or no? Yes. And that's what we expected, what we were expecting. कि भैया जब HbO2 इधर पे आए, यहां से आए HbO2, यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाए HbO2, और जब इस दरवाजे पर आ जाए HbO2, जब इस दरवाजे पर, इस डोर पर आ जाए, तो टिश्यू इतना CO2 से दे दे, इतना CO2 से दे दे कि Hb और O2 टूट जाए. अग्री? Yes, sir. नहीं बच्चों, नहीं समझाओ तो बोलना, मैं फिर समझाऊंगा, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी बात है. रिपीटिंग माय स्टेटमेंट. Bohr's effect tells what? कि if CO2 increases, then Hb and O2 will dissociate. यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर. CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कहां पर ज्यादा है दोस्तों? सर In tissues. सर हेल्डन इफेक्ट में आपने लिखा है कि O2 डिसोसिएशन डिसोसिएट विद Hb इफ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज. तो वो तो आपने बोहर्स इफेक्ट में लिखा है. कौन बोला? सर राशि. राशि बेटा फिर से धीरे धीरे पढ़, वो थोड़ा सा बोलने में कुछ गड़बड़ हो गया था, फिर से पढ़ राशि. सर आपने हेल्डन इफेक्ट में लिखाया है O2 डिसोसिएट विद Hb इफ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज, और आपने यहाँ डिफरेंशिएशन में जो बोहर्स इफेक्ट के नीचे लिखा है वो. जस्ट मिनट. बोहर्स इफेक्ट में जो लिखा वो समझ में आया राशि? यस सर. परफेक्ट. कि यदि CO2 बढ़ती है या pH कम होता है तो Hb और O2 डिसोसिएट होगा. यहां तक सबने सही लिखा और सबको क्लियर है? सर लेकिन ये Yes, पॉइंट sir. आपने हेल्डन इफेक्ट में लिखा है ना? Yes, sir. एक मिनट, वो बोलने में हो गया होगा, इसलिए मैं एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूँ राशि. ये पिक्चर क्लियर हुआ? बोहर इफेक्ट वाला पिक्चर क्लियर हुआ सबको? यस सर. Yes, sir. CO2 बढ़ती है या pH डिक्रीज होता है तो Hb और O2 डिसोसिएट होता है. इज दैट क्लियर राशि? यस सर. इसको अपोजिट तरीके से लिखना है. अपन ने क्या लिखा वो बोलने में गड़बड़ हो गई होगी. अपने को अपोजिट चलना है. कैसे अपोजिट चलना है? दूसरे तरीके से. अपोजिट नहीं, दूसरे तरीके से चलना. यहां हमने CO2 बढ़ाया तो Hb और O2 को डिसोसिएट किया. यहां लिखना चाहिए था अपन ने, जो भी लिखा होगा उसको देखना, Hb and O2 association. Association of Hb and O2 dissociate CO2. क्या यही लिखा है क्या? नो सर. ठीक है, नो प्रॉब्लम. रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक बार कंसेप्ट पकड़िए. लिखा तो आगे पीछे हो गया होगा, कंसेप्ट पकड़िए. बोहर कहता है कि CO2 बढ़ेगा तो Hb और O2 अलग होगा, और हेल्डेन कहते हैं कि Hb और O2 यदि एक हो गया तो CO2 डिसोसिएट होगा. ये नहीं लिखा होगा तो ऐसे ही लिखना है. ओके सर. स्पंदन, कैन यू रिपीट द स्टेटमेंट ऑफ हेल्डन इफेक्ट वंस अगेन, धीरे धीरे थोड़ा सा. Sir, what we have written first, that one. हाँ, हेल्डन में मैंने क्या लिखा है वो बताइए. According to the effect, oxygen dissociates with hemoglobin if the concentration of बस CO2 एक increases. मिनट, सही बोल रही थी राशि, उसको लिखने में अपने साथ. स्पंदन फिर से धीरे धीरे. According to the effect, oxygen dissociates with hemoglobin if the ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन, ऐसा लिखिए. अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएट CO2. बस इतना लिख के छोड़ दीजिए. रिपीटिंग माय स्टेटमेंट स्पंदन. Association of Hb and oxygen, association of hemoglobin and oxygen dissociate CO2. Rashi, now agree? Yes sir. Perfect.
सॉरी, वो लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा, मैं फिर क्लियर करता हूं बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, कंसेप्ट पकड़िए। एक कहता है इफ CO2 इंक्रीजेस HB एंड O2 डिसोसिएट। ये सब क्लियर है? स्पंदन, गायत्री, Yes, sir, clear. Yes, sir. ओंकार, आयुष, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? चलिए, Yes. दूसरा हेल्डेन इफेक्ट क्या लिख रहा है, इसका थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया। यहां CO2 बढ़ा तो HbO2 अलग, यहां लिख रहा हूं कि यदि HbO2 एसोसिएट, यदि HbO2 एसोसिएट तो CO2 डिसोसिएट, दैट्स इट। राशि, अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। लिखा वो भी गलत नहीं था, लिखने का तरीका गलत था, वो लिखा गलत नहीं था। राशि, ये बात आई समझ में आपको? Yes, sir. लिखने का तरीका, अप्रोच, क्योंकि दोनों का बात तो एक ही हो रहा है, लेकिन दोनों की अप्रोच अलग थी। एक कह रहा था कि CO2 के बढ़ने से HB और O2 अलग होता है, एक कह रहा है कि HB और O2 यदि जुड़े रहे तो CO2 डिसोसिएट हो जाता है। चलिए, कमिंग टू द पॉइंट, मैं जहां पर था समझा रहा था मैं आपको। CO2 इंक्रीज एट विच प्लेस? Tissues. By default. So by default, what you expect? Dissociation of HB and O2. Agree? Yes, sir. Yes, sir. If this will dissociate, that what we are expecting. यही तो चाहिए था हमें, ताकि जो HB और O2 वहां आया है वो O2 को छोड़ दे, यही हम चाह रहे थे। और वही इफेक्ट बताया किसने? बोर्स इफेक्ट। और यही मैंने भी लिखाया होगा, गायत्री, am I right? Yes, sir. At the near the tissue, since CO2 is much more, that dissociate HB and O2. Yes, fine, that's what we are expecting कि ऐसा होना चाहिए। और हेल्डेन साहब क्या कहता है कि सेम टाइम, वहां उल्टा हेल्डेन कहते हैं कि सेम टाइम जब HB और O2 अलग अलग होता जाएगा तो वो प्रमोट करेगा HB और CO2 की बाइंडिंग को। अग्री? अरे आवाज नहीं आई किसी की, मतलब नहीं भाई कौन नहीं समझा? जस्ट रेज, कौन नहीं समझा? जस्ट रेज योर हैंड्स। प्राप्ति Excuse भंडारी, me, sir. अबिल वर्गीस, हाँ बोलो। Sir, so we can say that because in lungs we want to take the carbon dioxide out of the blood, so there is Haldane effect. परफेक्ट परफेक्ट, आ रहा हूँ वही बताने के लिए, Haldane मैं study. वही समझा रहा हूँ। अभी जो 4-5 हैंड्स रेज हुए, पहले इनको भी। बच्चों ये नोट हो गया क्या? बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये नोट हो गया? Yes, sir. Please note this. I'm sharing the image and just when I'm sharing the image. चलिए, now I can erase this और फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको जो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। देखिए बच्चों, बिना किसी कंफ्यूजन के हम एक तरफ लिखते हैं बोअर्स इफेक्ट और दूसरी तरफ लिखते हैं हेल्डेन इफेक्ट। बोअर्स इफेक्ट क्या कहता है? इफ, बोलिए। CO2 increases.
increases and pH decreases in HB pH and decrease. Then what? HB and O2 Dissociation of HB and O2. HB and O2 dissociation. ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है बोर इफेक्ट अपने को. Yes. Yes, sir. अब हेल्डन इफेक्ट क्या कहता है उसको समझते हैं कि जैसे जैसे HB start association with O2, then what will happen? CO2 dissociate. CO2 dissociate. Agree? Yes. Yes. अब आपको नहीं लगता एक दूसरे के पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स है? Yes, sir. अरे भाई जब HB और O2 डिसोसिएट नहीं होगा, जब HB और मतलब जब CO2 बड़ा है तो HbO2 डिसोसिएट नहीं होगा तो क्या होगा? डिसोसिएट तो होना ही पड़ेगा क्योंकि अब HB किससे एसोसिएट होने वाला है? CO2. CO2 से. CO2. और इसका अपोजिट कि यदि HbO2 से जुड़ जाए तो किससे डिसोसिएट हो जाएगा? CO2. अब हमें बस ये देखना है कि 3 साइट्स हैं. एक है लंग्स, एक है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन यानी O2 का ट्रांसपोर्टेशन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, और इस तरफ पर है टिश्यू. अब ध्यान से सोचकर बोलना, मुझे क्या लगता है ये कंडीशन कहां पर आएगी? एनीवन? Tissues. Near tissues. CO2 will be more. Everyone is agree with this? Yes. Yes, sir. Yes, sir. What one will expect at tissue? At tissue, what we will expect? HB and O2 will associate or will dissociate? Dissociate. As the concentration of CO2 is more near the tissue. Dissociate. And if it is dissociate, that what we are expecting, so that ये कहां पर आ जाए? Tissue. Tissue. Perfect. Perfect. Yes, sir. Yes, sir. This dissociation is which effect? Bohr's effect. Bohr's effect. Bohr's effect. परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. ठीक. अब भाई जब O2 से डिसोसिएट हो गया तो HB और CO2 की बाइंडिंग कौन सा इफेक्ट करवाएगा? Halden's effect. Halden's effect. परफेक्ट. तो CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा इफेक्ट मदद करेगा? Halden's effect. Halden's effect. और O2 के ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा मदद करेगा? Bohr's effect. Bohr's effect. आ रहा है क्या समझ में? अब जब CO2 यहां पर आ जाएगी, जब CO2 यहां पर आ जाएगी, यहां पहुंच गई. अब CO2 किसके साथ एसोसिएट है? HB के साथ. अब यहां पर यहां किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया? Oxygen. Oxygen. अब HB और CO2 एसोसिएट होगा कि डिसोसिएट? Dissociate. Dissociate. At lungs. अब at tissue नहीं, at lungs. At lungs, HB and CO2 will dissociate. Yes or no? Yes. Yes. कौन से इफेक्ट से? Halden's. Agree? Yes, sir. और Yes. HB फ्री होके किससे बाइंड होगा? Oxygen. Oxygen से. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे जैसे O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, जैसे जैसे O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, HB CO2 डिसोसिएट. कौन सा इफेक्ट? Halden's effect. और जैसे जैसे CO2 बढ़ा तो इनका डिसोसिएशन बढ़ा. कौन सा इफेक्ट? Bohr's effect. यानी टिश्यू के पास O2 का डिसोसिएशन बोर इफेक्ट, CO2 का एसोसिएशन हेल्डन इफेक्ट. ठीक अपोजिट यहां आ जाए, CO2 का डिसोसिएशन हेल्डन इफेक्ट और O2 का बाइंडिंग दैट इज बोर्स इफेक्ट. अंडरस्टूड?
Yes, sir. Yes, sir. Sir. मोर और लेस यदि मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहूं तो मुझे इतनी चीज समझ में आ गई कि मैं आपको ये समझा सकता हूं सिंपल टर्म्स में, ज्यादा मैं उलझा भी ना उसको। तो एट टिश्यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट? Bohr's effect. Bohr's effect. At lungs, which is important? Haldane. Haldane Haldane's effect. effect. Understood? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Perfect. अब जितनों ने भी हैंड्स रेज किए थे, आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes, sir. Yes, sir. अब आपसे यदि सवाल आ जाए कि CO2 ट्रांसपोर्टेशन इज प्रमोटेड बाय, Haldane's effect. Haldane's effect. परफेक्ट, प्रमोटेड बाय व्हाट? Haldane's effect. Haldane's effect. And O2 transportation is promoted by Bohr's. Bohr's effect. Bohr's effect. प्रसन्ना, गितेश, अर्पित, कुंजल, अदिति, स्वानंदी, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये तो इतना समझ में आ गया कि टिश्यू के पास होगा बोर इफेक्ट और लंग्स के पास होगा हेल्डन इफेक्ट। इसके पहले मैंने क्लोराइड शिफ्ट भी बताई थी, क्लोराइड शिफ्ट और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। वेयर वाज द क्लोराइड शिफ्ट? Near the Near tissue. tissues. Tissue. Where was the reverse chloride shift? Near the At the lungs. alveolar site. Hope everyone is understanding my words. Is it? Yes. Yes, sir. Perfect. चलिए बच्चों, अब इसके बाद जो एनसीईआरटी में अपना स्टेटमेंट्स बचते हैं या एनसीईआरटी का जो सिलेबस बचता है, दैट इज पेज नंबर 268 डन, 269 डन, 270 डन, 271 की कुछ कैपेसिटीज मुझे बतानी है, 272 डन, 273 डन, 273 पर आइए, मैं लिखवाऊंगा नहीं, 273 का एक डायग्राम मैं आपको बताऊंगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसकी इमेज में शेयर कर दे रहा हूं। 273 देखिए, आई एम शेयरिंग द इमेज 273। Only NCERT statements, diagrams I'm sharing. अभी भी देख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे अभी बताइए। I'm going to share. This is your NCERT diagram, am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Inspired air, partial pressure of oxygen is 104. जाहिर सी बात है, इंस्पायर्ड एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है एल्वेलाई में, तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है कि Hb का एसोसिएशन किसके साथ होगा? ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड। Oxygen. तो ये ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन होना कौन सा इफेक्ट है? बोर इफेक्ट की हेल्डन इफेक्ट? Haldane. Haldane effect. Haldane. अरे हेल्डन इफेक्ट, Haldane. अंडरस्टूड? अरे Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes. Yes. बोर्स Yes. इफेक्ट, अरे बोर्स इफेक्ट Hb और O2 का डिसोसिएशन बताता है, हेल्डन इफेक्ट उसका एसोसिएशन बताता है। तो यहाँ लंग्स के पास कौन सा इफेक्ट होगा? Haldane effect. Haldane. तो अभी आपके सामने एनसीईआरटी रखी भी है और मैंने यहाँ आपको लिखवा भी दिया, तो हमें यहाँ लिख देना है कौन सा इफेक्ट?
Haldane spectrum. Noted? Yes, sir. चलिए, Yes. अब उसके बाद हम देख पा रहे हैं बच्चों, तो वो जो ऑक्सीजन था दैट डिफ्यूजेस इनटू पल्मोनरी वेन्स, रेड कलर का, पल्मोनरी वेन से हार्ट, हार्ट से सिस्टमिक आर्टरीज, और फिर टिश्यू, बॉडी टिश्यू तक पहुंच गया। बॉडी टिश्यू में यहां पर यदि आप देखेंगे तो O2 जा रहा है अंदर और CO2 निकल रही है बाहर। Am I right? Yes, Am I sir. right? Yes, sir. O2 वहां पहुंचते से ही, O2 के वहां पहुंचते से ही CO2 जब वहां बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में थी, तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखकर Hb और O2 क्या हो गया? Associate. क्योंकि यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कैसा था? High. ज्यादा। इसीलिए यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगा? बोहर्स इफेक्ट। और ये लेकर चला गया वापस हार्ट्स को, और हार्ट से चला गया एल्विलाई को, और एल्विलाई से निकल गई एक्सपायर्ड एयर। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ये एग्जैक्टली आपको याद करना पड़ सकता है, क्योंकि ठीक इस डायग्राम के पहले आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें एनसीईआरटी में लिखा है, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि PO2 95 mm ऑफ Hg होती है, PCO2 40 mm ऑफ Hg होती है टिश्यू के पास, जबकि PO2 40 है, PCO2 45 mm Hg हो जाती है वेन्स के पास। जब ऊपर जाता है तो एल्वेलाई में हो जाता है 104 and 40। तो फिगर यू नीड टू लर्न, दैट्स इट। Yes, sir. नाउ यदि उनकी सारी कहानी हो गई हो, तो अब यहां देखते हैं कि लंग्स में एक्चुअली जब आप डीप इनहेल करते हैं तो जो ऑक्सीजन जाती है उसको कितने बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है यार? उसको 3 लेयर क्रॉस करनी पड़ती है, विच इज रिटन हियर, Can you see the underline? Yes, sir. Yes, sir. About 3 layers. मतलब जो ऑक्सीजन यहां से आ रही है उसको 3 लेयर क्रॉस कर। पहली लेयर यदि आप देख पा रहे होंगे तो फर्स्ट लेयर है दोस्तों, अब मैं क्या बनाऊं, ये लेयर दिखी क्या? Yes, sir. दिखी? Yes, sir. Yes, sir. This is first layer, which is called as alveolar layer. Which layer? Alveolar layer. सेकेंड लेयर आप येलो कलर का बेसमेंट सब्सटेंस देख रहे हो, मिला? मिला? Yes, sir. Yes, sir. और तीसरा जो आप देख रहे होंगे वो ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन देख रहे होंगे। दिस वन इज द थर्ड। अंडरस्टूड? अरे अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. भाई ऑक्सीजन यहां से अंदर आ रही थी, O2 को रास्ते में 3 बैरियर थे, पहली ये थिक वॉल, दूसरी वो येलो, और तीसरी ये ब्लड वेसल्स। O2 first layer alveolar thick wall, second layer this yellow one, and third layer is this. Please check. If not understood, tell me. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Perfect. और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 3 लेयर हैं, ब्लड वेसल की लेयर को गायत्री मैडम कहते हैं एंडोथीलिया। पहली लेयर होती है thin squamous epithelium of alveoli, alveolar wall, one cell thick लिखा है, only one cell thick मतलब वो thin layer है। दूसरा है squamous epithelium of endothelium of alveolar capillaries, और दोनों के बीच में भरा पड़ा है एक बेसमेंट सब्सटेंस। तो मैंने 3 ही अंडरलाइन किए हैं, squamous epithelia, endothelia और basement substance. These are the 3 layers that has to be crossed
by either by O2 when it diffuse in or by CO2 when it is diffused out. Gayatri, tell me. Sir, is the basement substance like very fluffy and airy, so oxygen can pass easily? Yes, it's a fluid. Every two organs, where there are two organ meets, there must be some fluid. There must be some fluid to make the surface less frictional. Gayatri, understood? Yes, sir. Thank you, sir. Perfect. Any more doubt? Any more doubt? No doubt, sir. No, sir. No doubt. So you find three layers. One layer is alveolar wall, second is blood vessel, और third in between these two. लेकिन यहां पर आप जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये तीनों मिलाकर महज कुछ नैनोमीटर, महज कुछ 1 और 0.1 और 0.2 माइक्रोमीटर की वो थिकनेस है. एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता दूंगा या आपने मॉड्यूल में लिखा होगा, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां भी दिखेगा. क्या लिखा है, पढ़िए जरा. As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2. My dear friends, 101% बच्चे गलत करते हैं, 101%. लेकिन रेजोनाइट्स वो गलती नहीं करेंगे. आपसे पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ अफिनिटी. ऑर्डर ऑफ अफिनिटी तो ध्यान रखिए, ऑर्डर ऑफ अफिनिटी सबसे ज्यादा अफिनिटी होती है HB की अफिनिटी. यदि आप मुझसे बात करें, HB की हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा अफिनिटी होती है दोस्तों CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड. फिर उससे कम होती है ऑक्सीजन के साथ, और फिर उससे कम होती है CO2 के साथ. अफिनिटी बोल रहा हूं मैं, सॉल्युबिलिटी नहीं. सॉल्युबिलिटी की यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी CO2, देन O2, देन CO. सॉरी, क्या हो गई? जस्ट मिनट. सॉरी, वन मोर टाइम. मैंने आपसे कहा सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? CO2. 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 Solubility is more of CO2, then O2, and then CO. और अफिनिटी किसकी ज्यादा है? CO. O2 and then CO. Noted? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्युबिलिटी की जहां तक बात है तो CO2 इजीली सोल्यूबलाइज हो जाती है, जबकि अफिनिटी की बात आती है तो सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड. और इसीलिए क्या होता है बच्चों, जैसे ही आप किसी गाड़ी या किसी व्हीकल के वहां से पास हो रहे हो, इफ यू आर पासिंग थ्रू अ व्हीकल जो कि बहुत ज्यादा इमिशन कर रही हो, बहुत ज्यादा काला धुआं निकल रहा हो उस व्हीकल से, तो आपको खांसी आने लगती है, आपका दम घुटने लगता है, क्योंकि उसमें से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑटोमोबाइल के इमिशन से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ी तेजी से आपके हीमोग्लोबिन से बाइंड होने लगता है, क्योंकि अफिनिटी ज्यादा है, वो तेजी से बाइंड होने लगता है, जिसलिए आपको दम घुटने लगता है. क्योंकि CO अंदर जाके करेगी क्या, उसके बाद उसकी अफिनिटी O2 से होती है और उसके बाद उसकी अफिनिटी CO2 से होती है. तो ये अजीब सा है. अफिनिटी इनका सीक्वेंस ये है और सॉल्युबिलिटी का सीक्वेंस, CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है O2 से और उसकी ज्यादा है CO से. नीट के क्वेश्चन से ये पैराग्राफ ही पूरा नीट का था, डायग्राम और पैराग्राफ. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट, परफेक्ट. अब उसके बाद पेज नंबर एनसीईआरटी में मेरे पास है 274. वी हैव डन विद दिस. 275. नाउ वी कम टू द रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर.
रेगुलेशन आई एम टेलिंग यू. आपका थर्ड लेक्चर है या नहीं आज? No, sir. हाँ सर. फिजिक्स का थोड़ा Yes. थोड़ा सा. Okay. Is there third lecture? Yes or no? Yes, sir. Yes, सर sir. दो सर लेने वाले. So I am leaving you. No problem. I am leaving you. बस एक पार्ट रह गया बच्चों. हार्डली आधे घंटे का काम रह गया है. मुझे आपको रेगुलेशन बताना है और मुझे फिर आपको डिसऑर्डर्स बताना है. रेस्ट एवरीथिंग इज डन विद ब्रीदिंग. नेक्स्ट समझ के चलिए कि लास्ट डे, तो नेक्स्ट क्लास मेरी डीसी क्लास होगी. सिर्फ मैं रेगुलेशन बताऊंगा और डिसऑर्डर बताऊंगा और विल स्टार्ट डिस्कशन. सो नेक्स्ट क्लास विल बी कंप्लीटली डिस्कशन. डोंट मिस, क्योंकि उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, लाइक डिकम्प्रेशन सिकनेस. बीमारियों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों ऐसा होता है कि जो डाइवर होता है वो डाइव सीधी नहीं लगाता, तिरछी लगाता है. और क्यों ऐसा होता है कि वो डाइवर पानी में से आते समय भी तिरछा आता है, सीधा नहीं आता. या क्यों ऐसा होता है कि एरोप्लेन व्हेन एरोप्लेन टेक ऑफ, वो सीधा क्यों नहीं टेक ऑफ करता, वो ऐसे क्यों टेक ऑफ करता है. या वो जब लैंड करता है तो सीधे क्यों नहीं ऐसे लैंड कर जाता स्ट्रेट, वो तिरछा क्यों आता है. सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस related to our life. So please make sure कि आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हो, मॉड्यूल की पूरी एक्सरसाइज आपने लगा ली हो, और ना मिली हो फिजिकली, हार्ड कॉपी ना मिली हो तो रेजो सर पर आपने कर ली. प्लस मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास में आप सब अटेंड करेंगे और एक अच्छा खासा डिस्कशन आप मेरे साथ करेंगे. राइट? एनी डाउट टू एनीवन? No doubt, sir. No, sir. All the best. See you in the very next class. Excuse me, sir. Yes, excused. Sir, actually not related to this topic, but like sir, PT3 मतलब every 3 weeks के बाद होती है ना. तो PT3 इस संडे को मतलब बाय कैलकुलेशन आती है, पर हमारे लास्ट वीक पूरा हॉलीडे था, तो PT3 भी एक वीक आगे जाएगी. नहीं, PT3 संडे होगा मैडम, 100% होगा. Sir, Okay. time नहीं है. PT3 इस संडे होगा. अभी सिलेबस भी अपडेट कर देते हैं आपका. यदि वो होगा तो डेफिनेटली होगा. एवरी थर्ड संडे देयर विल बी टेस्ट. वीक लॉन्ग ऑफ होने के बावजूद 12th का उनका पेपर उस संडे पेपर हुआ, लास्ट संडे, जबकि पूरा ऑफ था, फिर भी संडे पेपर हुआ. सो वो होगा गायत्री मैडम. सिलेबस आज अपडेट कर देते हैं आप. ओके, Yes, sir. Thank you, sir. चलिए, ऑल द बेस्ट.